we have finished till the your data pre-processing, right? So which are the different major issues in data pre-processing? Which are the different tasks we have performed? Anyone remember? Any student? Anyone remember different tasks we have seen last lecture? Data cleaning, Yes, data cleaning. integration, Yes, data integration. data reduction, Data, yes, data reduction. Then data transformation, right? Okay. So let's start. Is my slides are visible, all of you? Yes, student. Yes, ma'am. Okay, so today Yes, we'll ma'am. start. We have already seen what are the different major tasks in data pre-processing. That is data cleaning process, data integration process, data reduction process. Now we will see data transformation and data discretization. Okay. So what is data transformation means? Why we require to transform our data? What is that? First we have process the cleaning operation. जो भी कुछ noise है उसमें से वो हमें remove करना है, right? So we have done to remove our noisy data. Then in noisy data, after missing, we have find out which are the missing attributes, which are the missing values, and we can replace that values by their mean values, etc. What we have performed in cleaning operation. Integration, what we have to do is multiple different data sources have to become integrate into one common platform, right? Then we have seen your proportion of data reduction में what we have seen, how to reduce their dimensionality. Okay, now we have seen the next part is data transformation and data discretization. So data transformation is basically when we have operational database, right? In that time changing with the requirements, whatever data will come, it can be changes. So what is the requirement to know that first, and then data warehouse we have integrate this data from multiple sources, so that this typically problem will arises, that is called as inconsistency. Okay, so the function which map the entire set of values of a given attribute to a new set of replacement values is nothing but called as transformation. Means what will happen कि sometime the values are mismatched मतलब डेटा वो मीनिंग का सेम है लेकिन वैल्यूज नहीं मैच हो रहे हैं. सो एट दैट टाइम वी हैव टू मैच दैट वैल्यू, राइट? क्योंकि हमें सेम प्लेटफॉर्म पे उसको क्वेरी रिट्राइव करना है, तो वी हैव टू transform this value into one single form, so that is called as a transformation. So we have to deal with this inconsistent data transformation process is going to be performed. So what is the most commonly used in this? That is called as attribute naming transparencies. So attribute naming transparency is nothing but what it is, कॉमन यूज ऑफ डिफरेंट नेम्स. जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि मैंने मेरे टेबल में रोल नंबर दिया है आर नंबर, ओके, किसी और ने वही टेबल क्रिएट किया, उसमें दिया है आर अंडरस्कोर नंबर. तो दीज आर कॉल्ड एज डिफरेंट नेमिंग ट्रांसपेरेंसी की है एक ही है. मुझे टी की रोल लिस्ट क्रिएट करनी है, लेकिन मैंने क्या किया है, आर नंबर से क्रिएट किया है और किसी अदर मैम ने आर अंडरस्कोर नंबर किया. तो ये जो जब मैचिंग में कॉमन प्लेटफॉर्म पे करूंगी तो ये जो एट्रीब्यूट्स है कॉमन ट्रेस होने चाहिए, राइट? यू आर गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? हेलो, समझ में आ रहा है क्या है एट्रीब्यूट ट्रांसपेरेंसीज? एट्रीब्यूट नेमिंग इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम कब अराइज होता है? Where we are going to map different attributes with different name, in that time attribute naming inconsistency will be arise. Okay. So which are the different methods of data transformation? One is called as a smoothing. Smoothing हम लोगों ने देखा by using binning method. So smoothing we are going to do is we have to remove the noise from the data. Whichever the noisy data we have to remove,
Then second is attribute or feature construction. So that we have to construct a new attribute constructed from the given ones. So original attributes को हम लोग कोई common format में है, that is called as transformation. Then aggregation. Aggregation, everyone know that aggregation is nothing but summarization or summary of your given data or data cube construction. And one more method is called as normalization. Everyone know normalization. We have already studied in your DBMS. So everyone know normalization क्या करता है. But this is normalization technique we have to use for data pre-processing. Okay. What do you mean by normalization in general terms? Yes, student. What do you mean by normalization? किया है ना, one of first normal form, second normal form in DBMS. You have remembered this? Yes, student. क्या करते हो normalization में आप लोग? Hello. Anyone? Ashish. आशीष यादव. यस मैम. नॉर्मलाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग? मैम उसमें हम लोग डेटा को शॉर्ट करते हैं. शॉर्ट करते हैं. बट व्हाट इज द प्रोसेस? व्हाई वी हैव परफॉर्म नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स? मैम मतलब उसमें एक रहता है कि पहला फर्स्ट वाले में रहता है मैम कि एक कॉलम में एक ही डेटा होना चाहिए, मतलब एक एट्रीब्यूट में जो भी रहेगा. हम लोग रिडंडेंसी रिड्यूस करते जाते हैं, राइट, इन नॉर्मलाइजेशन टेक्निक. यस मैम. हाँ, सो नॉर्मलाइजेशन इज टू रिड्यूस द मल्टीपल कॉमन डेटा जो है, रिडंडेंट डेटा जो है उसको हमें रिड्यूस करना है एंड वन कॉमन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में उसको लेके आना है, राइट. सो सेम सिमिलर वे इन डेटा प्री प्रोसेसिंग ऑल्सो देयर इज वन मेथड कॉल्ड एज अ नॉर्मलाइजेशन where we have to scale to fall within a smaller or specified range. We have to decide some particular range and we have to transform that value into particular range. Then in that there is a technique, three techniques called as mean max normalization, z-score normalization and normalization by decimal scaling. We'll see what is exactly mean max normalization, z-score and decimal scaling normalization. Then discretization. Discretization is the concept which is coming into the hierarchical or climbing. So it is coming under your classification technique and clustering technique. So जब वो chapter आ जाएगा, we'll see what is the discretization. There is some, just wait, normalization will first open. Okay student, open your notebook. सब notebook लेके बैठते हो ना? Yes, students. हाँ. So normalization. So normalization के three techniques है. You have to write the formula. See, first is mean max normalization. Mean max normalization is nothing but whatever we have to transform. Mean max normalization with a linear alternation of your original data. So in that formula, first it is given whatever the value. V is nothing but the value. Sorry, just one sec. Here, this is my formula. जो मैंने आपको दिखाया है. Just wait. This is my formula. Okay. So ये formula में क्या है? Whatever the V value है, V मतलब the value. ओके वो हमें ट्रांसफॉर्म करनी है, इसलिए वी डैश दिया है. सो मीन मैक्स नॉर्मलाइजेशन में हमें वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करना है, इसलिए उसको बोलते हैं वी डैश इज इक्वल टू वी. वी इज मतलब जो वैल्यू है उसको माइनस मीन वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्स माइनस मैक्स ए माइनस मीन ए. सो व्हाट इज दिस मैक्स max a minus mean a, that is which is given, already given. Okay, and over here it is given as a new mean of a and new max of a, that is given new value, new mean value. तो उसमें हमें ट्रांसफॉर्म करने वाला वैल्यू है. तो इनटू क्या है? न्यू मैक्स ए माइनस न्यू मीन ए प्लस न्यू मीन ए.
तो हमें क्या करना है, बेसिकली जो भी हमारा डेटा दिया हुआ है वो डेटा को हमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, उसमें से डेटा लगेगा, उसको हम लोग मीन वैल्यू से माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय मैक्स ए माइनस मीन ए। मतलब क्या है, ओरिजिनल उसका मैक्स से और मीन ए से माइनस करेंगे और उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, हमें जो भी हमारे इसमें न्यू वैल्यू में हम लोगों को ट्रांसफॉर्म करना है। सो दैट इज कॉल्ड एज न्यू मैक्स ए एंड न्यू मीन ए। समझ में आ रहा है सबको? एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रही हूं? तो बताओ मुझे। ये स्टूडेंट जो मैंने क्लिक किया है वो फॉर्मूला है, फॉर्मूला v डैश इज इक्वल टू v माइनस मीन डिवाइडेड बाय मैक्स a माइनस मीन a टू न्यू मैक्स a माइनस न्यू मीन a प्लस न्यू मीन a। दिस इज फॉर्मूला। मैंने थोड़ा सा ब्रॉड किया, दिख रहा है सबको? ये स्टूडेंट, हाँ, first note down that formula, then I will explain you with example. हो गया सबका फॉर्मूला लिख के? ये स्टूडेंट, okay, let's take this example, that is let income range is $12,000 to $98,000, normalized to ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट में 0.0, 1.0। सी ऑलवेज ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो रिडक्शन टेक्निक में होता है, दैट वैल्यूज इन बिटवीन द रेंज ऑफ 0 to 1। ओके, सो ऑलवेज यू विल गेट दिस न्यू मीन मैक्स वैल्यू इन द रेंज ऑफ 0 to 1 इटसेल्फ। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज कि हमारे पास इनकम की रेंज दी हुई है 12,000 to $98,000 में है, दैट वी हैव टू नॉर्मलाइज इनटू सम स्पेसिफिक मीन मैक्स वैल्यू। तो ये जो हमें नया मिला है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में आपको दिखाई दे रहा है सबको, ये स्टूडेंट, जो मैं उसका कलर चेंज कर रही हूँ, आई विल मेक इट एज येलो। दिखाई दे रहा है सबको? दैट इज कॉल्ड एज योर न्यू मीन ए एंड न्यू मैक्स ए। सो दैट इज न्यू मीन ए वैल्यू है 0.0 है, न्यू मैक्स वैल्यू है 1.0। दिख सबको? कलर चेंज करो, ब्लू कलर किया। दिख रहा है सबको? Yes. हाँ, नाउ देन $73,000 इज मैप टू। तो हमें कौन से वैल्यू को मैप करना है? 73,000 को मैप करना है। तो हमारी वैल्यू है 73,000 को हमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो हमारे पास जो इनकम की रेंज है 12,000 98,000, दैट इज योर ओल्ड मीन मैक्स वैल्यू है। ओके, सो वहां पे हमारी ओल्ड मीन वैल्यू क्या है? 12,000 है, एंड मैक्सिमम वैल्यू 98,000 के बीच वाला इनकम का रेंज है। तो दैट इज योर ओल्ड मीन मैक्स वैल्यू। गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? हेलो, समझ में आ रहा है सबको? प्रथमेश, प्रणेश, सी लेट्स सी द एग्जाम्पल दिख रहा है सबको? जो मैंने रेड में किया हुआ दैट इज एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल में बोला है लेट इनकम रेंज दी हुई है, रेंज इज हैविंग 12,000 to 98,000 की रेंज है, दैट वी हैव टू नॉर्मलाइज टू न्यू मीन मैक्स वैल्यू दी है 0.0 एंड 1.0। ओके, देन वी हैव टू फाइंड
73,000 इज मैप्ड, 73,000 को मैप करना है मुझे. तो व्हाट इज माय v ओवर हियर, जस्ट होल्ड डाउन, आई विल ऐड वन मोर न्यू स्लाइड. सी नाउ हियर माय v वैल्यू क्या है, 73,000. समझ में आ रहा है सबको? सी दिस इज माय, ये वैल्यू को मुझे मैप करना है. गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? हाँ. नाउ व्हाट इज माय फॉर्मूला? I will copy paste this formula. What is my v? What is my v over here? 73,000. Yes. So I have to find v dash के लिए मेरी v वैल्यू है 73,000 माइनस उसकी मीन वैल्यू क्या है, ओल्ड मीन वैल्यू. क्योंकि हमारी जो सैलरी की रेंज है वो 12,000 टू 98,000 के बीच में है, तो 12 मिनिमम है, राइट? सो यहाँ पे 12,000, राइट, डिवाइडेड बाय मैक्स वैल्यू कितनी है, 98,000 माइनस मीन वैल्यू है 12,000, राइट? यहाँ तक सबको समझ में आया? यस मैम. देखो यहाँ पे वही किया, समझ में आ रहा है? अब भी क्या करना है मुझे, इनटू न्यू मैक्स वैल्यू क्या है, 1.0, राइट? आप लोगों ने एग्जांपल लिखा है ना, ये स्टूडेंट नदीम, 1.0 माइनस न्यू मीन वैल्यू क्या है, 0.0, राइट, प्लस न्यू मीन वैल्यू, न्यू मीन वैल्यू क्या है मेरी, 0.0. देखो सेम है, समझ में आ रहा है क्या किया? आउटपुट निकालो, 0.716 है क्या, देखो इसका. दिस इज द आउटपुट. कैलकुलेशन करो. हाँ क्या हाँ क्या ये स्टूडेंट, you are getting this value 0.716. $0.709. 716 approximately नहीं आनी चाहिए. So this is your v dash value. Sorry. Yes ma'am, 0.709. 709, यहाँ पे 716 दी है. So it is approximately near about आनी चाहिए उसके. ठीक है? So this is called as mean max normalization. समझ में आया सबको क्या मीन मैक्स नॉर्मलाइजेशन, हाउ टू फाइंड मीन मैक्स नॉर्मलाइजेशन वैल्यू? यू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला. ये स्टूडेंट, एनी कंफ्यूजन? आपने प्रॉपर नोट डाउन किया सब लोगों ने? ओके. सो नाउ विल गो फॉर Z score normalization. This is different. This is next technique of normalization. So Z score normalization, that is normalized based on your mean and standard deviation. Now everyone know how to find the standard deviation, right? So mean and standard deviation, it is best. So Z score is also known as zero mean normalization. Okay. So यहाँ पे mu मतलब क्या रहता है, mean value रहती है, और you can R जैसे रहता है उसको हम लोग mean value बोलते हैं. और दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन सिंबल सिग्मा. तो ये हम लोगों ने और देखा है. स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, कौन बताएगा मुझे? विल टेल मी स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला. ये स्टूडेंट, नोटबुक है ना आपके पास?
हाउ टू फाइंड स्टैंडर्ड Yes, ma'am. डेविएशन? हाँ, मैम समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर अपॉन n माइनस वन, और वो पूरा अंडर रूट में। राइट, तो दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमें जो भी ट्रांसफॉर्म करनी है वैल्यू, उसको बोलते हैं v डैश, और ये जो v है दैट इज कॉल्ड एज माई वैल्यू, जिसको मुझे ट्रांसफॉर्म करना है। तो v माइनस म्यू ए, म्यू मतलब मीन वैल्यू, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन उसका निकालना है। तभी हमें जो भी मिलेगा उसको बोलते हैं हम लोग जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन। नाउ इस यहाँ पे सेम एग्जांपल यूज किया है, सो यहाँ पे नहीं, सेम एग्जांपल नहीं, अलग वैल्यू यूज किया, 73,600 वैल्यू यूज की है, उसको ट्रांसफॉर्म किया है। सो उसका मीन एक उन्होंने कंसिडर किया है ऑलरेडी, क्योंकि देखो यहाँ पर एग्जांपल में उन्होंने म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी दे के रखा है, सो वही उन्होंने डायरेक्टली प्लेस किया है। इफ इट इज नॉट गिवन देन यू हैव टू फाइंड आउट, ओके, वैल्यूज का निकाल के आपको फाइंड करना पड़ेगा। इफ इट इज ऑलरेडी मेंशन इन क्वेश्चन कि स्टैंडर्ड डेविएशन उन्होंने ऑलरेडी दिया है, तो आपको जरूरत नहीं है निकालने की, ओके। नहीं दिया है तो आपको मीन वैल्यू निकालना, एवरीवन नो हाउ टू कैलकुलेट मीन वैल्यू एंड एवरीवन नो हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। So if it is already mentioned in your example, then you don't have to calculate, directly put the numbers. If not given, you have to calculate. So यहाँ पे v dash, v है मेरा नंबर 73,600 माइनस उसकी मीन वैल्यू दी है 54,000 डिवाइडेड बाय 16,000, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी गिवन है। सो उसका आया है v dash वैल्यू इज 1.225। समझ में आया कैसे निकालना है ये स्टूडेंट? सी यहाँ पर भी अच्छा ही देखो, ये एग्जांपल में भी उन्होंने 73 नहीं लिया, 73,600 लिया, इसलिए उनका वैल्यू थोड़ा चेंज आ रहा है, और हमने 73,000 लिया, और यहाँ पे उन्होंने 73,600 लिया। यू हैव टू टेक द यस मैम, वैल्यू। अगर 73,600 लिया तो मैम वही आंसर आ रहा है, हाँ, तो उन्होंने वो 716 गलती की है, जो भी वैल्यूज गिवन देते हैं वो उसी का निकालना है, तो 600 नहीं आना चाहिए एक्चुअली वहां पे, ओके, जो भी है। तो आप अपने आपका जो गिवन है उसी से निकालो। यहाँ पे 73,000 ले लो माइनस 54,000 डिवाइडेड बाय 16,000। ओके, जेड स्कोर का फॉर्मूला पता चला। दिस इज द जेड स्कोर जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है v माइनस मीन वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, गुड। नो मैम। ओके, नेक्स्ट इज डेसिमल स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन। डेसिमल स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन क्या है? which is based on your maximum absolute value of the attribute of the decimal point which can be moved. Okay, so it is given by formula v dash is equal to v divided by 10 raised to j, where j is smallest integer such that max mod of your v dash less than 1. अब यहाँ पे क्या कंसिडर करना है एक्चुअली देखा जाए तो, जैसे कि हम लोग वो ज्यादा आप वो फॉर्मूला 10 raised to j के इसमें मत जाना, just I will tell you the simple method, that is you have to consider, suppose my number is, suppose I am giving my v value is equal to suppose 200. okay, तो इसके लिए मुझे डेसिमल स्केलिंग निकालना है, तो क्या आएगा v डिवाइडेड बाय 10 raised to sum my points whichever I will given. okay, so 10 raised to k something. so see यहाँ पे आया मेरा 10 raised to 3, suppose 10 raised to मैंने 3 लिखा है, 10 raised to k actually. okay, suppose मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ k. so k you have to define. so how you have to define the k value? that is you have to take the decimal upon in your this, कितने डिजिट का ये नंबर है, नंबर कितने डिजिट का है ये स्टूडेंट? 3 डिजिट का नंबर है, राइट? तो यू हैव टू कंसिडर द वैल्यू ऑफ दिस डेसिमल पॉइंट। किसके ऊपर डिसाइड करोगे बताओ मुझे?
zeros. हाँ, उतने जीरो आने चाहिए। तो कितने जीरो डालोगे वहां पे आप? मैम 3 मतलब मैम यस 3 डिजिट से तो फिर 3 लेंगे ना डेसिमल के लिए। हाँ, तो मतलब आपको क्या लेना है? 3 डिजिट्स नंबर लेना है। समझ में आ रहा है क्या? सो डिवाइडेड बाय 100 आएगा आपका। हेलो हाँ बोलो। मैम, नहीं समझ फिर से समझा सॉरी, नहीं। डिवाइडेड बाय 1000 उतने वैल्यूज आएंगे 10 के ऊपर। डेसिमल नंबर एक्चुअली इट इज कैलकुलेटेड बाय द रेंज बिटवीन सम you will say -99,000 to 99 के बीच में। so we will say that 10 raised to k, so k is nothing but 1000। ओके, सपोज 10 raised to k is 1000 हम लोगों ने कंसिडर किया। सो वी हैव मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर है। ओके, सो 3 डिजिट कैसे है कि 1 1 2 3 डिजिट नंबर है, तो हमें 1 के ऊपर उतने जीरो लगाने। सपोज इट इज 2 डिजिट नंबर, तो मुझे 1 के ऊपर 2 डिजिट्स लगाने। समझ में आ रहा है? जितने डिजिट का नंबर है उससे हमें डेसिमल पॉइंट निकालना है। तो जस्ट कंसिडर दैट कि जितने हमारा डिजिट का नंबर है उतने हमारे जीरोज आएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि यहाँ पे जो रेंज दी हुई है v डैश, मतलब ये फॉर्मूला है कैसे डेसिमल स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन कैलकुलेट किया है, दैट इज v ऑफ i डिवाइडेड बाय 10 raised to k। तो यहाँ पे रेंज होती है समथिंग -991, सो दैट इज कैलकुलेटेड बाय v डैश, तो 99, तो उसको एक राउंड फिगर हम लोग जनरेट करते हैं। सो सिमिलर वे यू जस्ट कंसिडर दैट कि हमारा जितना भी नंबर होगा उतने नंबर का हमें डिजिट डालने हैं, डेसिमल नंबर डिजिट डालने हैं। समझ में आ रहा है क्या? मतलब मैम k का वैल्यू जो रहेगा नंबर ऑफ डिजिट्स रहेगा ना। यस, ओके डिजिट डेसिमल नंबर डालना है ना, तो दैट इज डिजिट्स। सो के 2 आएगा, यहाँ पे 2 वैल्यूज है तो के इज 2। जब मेरी वैल्यूज 3 होगी तो के इज 3। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर भी मेरा डिजिट बढ़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? यस मैम। सब लोग बाकी के 48 स्टूडेंट्स। यस मैम। यस डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर है ना, तो के इज नथिंग बट योर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। ओके, तो जितने डिजिट्स है उतने आपके जीरोज आएंगे। समझा सबको? तो इन दैट केस यू हैव टू कैलकुलेट दिस v डैश, सो दैट इज कॉल्ड एज नथिंग बट योर डेसिमल स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन। ओके, जस्ट राइट डाउन दिस फॉर्मूला। That is called as maximum absolute value, which is depend upon decimal point is moved depend upon your maximum absolute value. Any doubt over here, student? किसको ये 3 टेक्निक समझ में नहीं आए हैं? बिकॉज जो हमारा सेकेंड ट्यूटोरियल था इट इज बेस्ड ऑन दिस टेक्निक्स। कितने लोगों को समझ में आया है और कितने लोगों को नहीं आया है? जस्ट नहीं आया तो अभी पूछो फिर से। सबको समझ में आया है? नदीम, नदीम समझ में आया आपको? हाँ, तो अब मैं एक आपका जो उस दिन का ट्यूटोरियल बाकी था वो मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं अपलोड करूंगी तो सॉल्व कर देना। दैट इज ट्यूटोरियल नंबर 2। 1 सब लोगों ने सबमिट किया है? ये स्टूडेंट? यस मैम। ओके, सो दिस इज योर बीआई लैब का ट्यूटोरियल 2। दैट इज इन फर्स्ट था आपका डेटा एक्सप्लोरेशन के ऊपर था फर्स्ट ट्यूटोरियल। सेकंड ट्यूटोरियल इज बेस्ड ऑन डेटा प्री प्रोसेसिंग। ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करोगे बताओ?
कोई भी बताना। हमें दिया है यूज टू नॉर्मलाइज द फॉलोइंग डेटा। मैम हाँ इसमें बोलो। मैम वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मिनिमम 0 रहेगा, मैक्सिमम 100 रहेगा, फिर बाद में न्यू मिनिमम 0 दिया है, न्यू मैक्सिमम 100 दिया है, 1 दिया है, राइट ये वाला। राइट। तो ये जो दिया है 0 एंड 1 है ना, ये न्यू मीन मैक्स वैल्यूज है। ओके सॉरी। यस मैम। और उसके ओल्ड मीन मैक्स वैल्यू क्या आएंगे? मैम 200 and 1000। Yes, 200 is mean value and 1000 is max value, that is old mean max value. And ये जो new सॉरी यहाँ पे दिया है mean is equal to 0 and max is equal to 1, ये हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए दिया हुआ है। समझ में आया ना? तो that is called as new mean max value. ओके सबको समझ में आया? ओके सो इस हाँ क्या वी का वैल्यू वी, हाँ हाँ अच्छा हुआ बताया। वी आपको हर एक का निकालना है, फर्स्ट 200 का, बाद में 300 का, बाद में 400 का, 600 का एंड 1000 का, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक वी नहीं दिया है ना। मतलब 5 बार सेम सम सॉल्व करना है। यस यस, बिकॉज यहाँ पे डेटा जितना है और डेटा स्पेसिफाई मेंशन नहीं किया है, तो यू हैव टू कैलकुलेट फॉर योर होल डेटा सेट। ओके जेड स्कोर के लिए भी सेम मैम। हाँ, जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आपको म्यू वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे मीन वैल्यू नहीं दी है, राइट? तो यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड डेविएशन की भी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दैट इज एसडी, राइट? मीन वैल्यू कैसे करोगे? इसका एडिशन करोगे, राइट? डिवाइडेड बाय, 500। हाँ, और एसडी कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको पता है, जो फॉर्मूला है उसमें डाल के एसडी कैलकुलेट करो और बाद में सबके लिए कैलकुलेट करना। समझ में आया आपको ये 2 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं? यस मैम। किसको प्रॉब्लम Yes, है ma'am. अभी तक बताओ मुझे। बाकी के कैफ कुछ प्रॉब्लम है? हाँ बोलो। हम पूनम बोलो। पार्ट मतलब वो नहीं समझा, मतलब मेन और मैक्स तो सेम ही रहेगा ना, 200 and 1000। किसके लिए? फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ फर्स्ट वाला। फर्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या अपने पास? देखो v माइनस जो रहता है वो यहाँ पे पहला जो है v माइनस मीन दिया है डिवाइडेड बाय मैक्स ए माइनस मैक्स मीन ए, राइट? तो ये जो रहता है यहाँ पे ओल्ड वैल्यू रहते हैं मीन मैक्स के। तो ओल्ड वैल्यू मतलब कौन से? जो आपके डेटा सेट में आएंगे वो वैल्यू। तो डेटा सेट में आपका 200 इज मीन है एंड 1000 मैक्स है ना। हाँ हाँ, और उन्होंने क्वेश्चन में आपको न्यू मीन मैक्स वैल्यू दी है, दैट इज 0 एंड 1 के रेंज में आता है। जो मैंने बोला, जब ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कोई भी वैल्यूज को करते हैं, दैट इज इन रेंज बिटवीन 0 to 1। तो उन्होंने नया जो वैल्यूज दिया हुआ है वो क्वेश्चन में मेंशन है, दैट इज कॉल्ड एज न्यू मीन मैक्स वैल्यू। ये जो देखो ये वैल्यू, इसको हम लोग बोलेंगे नया मीन मैक्स वैल्यू। समझ में आया? वो ऐसे क्वेश्चन में बताएंगे नहीं आपको कि दिस इज न्यू मीन मैक्स वैल्यू, दैट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड। समझा सबको? ये स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू? यस मैम। जेड स्कोर पता चला कैसे निकालना है? जेड स्कोर के लिए भी यहाँ पे Yes, ma'am. आपको मीन वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मेंशन नहीं है, तो पहले आपको वो निकालनी पड़ेगी। वो निकालने के बाद ही आपको जो भी म्यू माइनस, दैट इज वैल्यू माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, वो हर एक वैल्यू के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक वी वैल्यू मेंशन नहीं है। तो 5 वैल्यूज के लिए आपको जेड स्कोर निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? डोंट बी कंफ्यूज। यस मैम। सबको ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, suppose, read out question properly. Suppose that the data for analysis includes the attribute age. The age values for tuples are, ये age values दिए हुए जो रेड में मैंने दिखाया है, ठीक है? उसको क्या करना है? पहले उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज मीन मैक्स नॉर्मलाइजेशन टू ट्रांसफॉर्म द वैल्यू 35 फॉर एज ऑन टू द रेंज 0.0 to 10। तो कैसे निकालोगे?
सब डेटा सेट के लिए Ma'am, निकालोगे। V35 हाँ, तो minimum 35 के लिए ही निकालना है, नॉट फॉर ऑल डेटा सेट। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उन्होंने वैल्यू। समझ में आया सबको? यहाँ पे ओल्ड मीन मैक्स क्या आएगा? ओल्ड इज 13 मीन एंड मैक्स इज 70 और नया वाला 0 एंड 1। समझा सब लोग? Yes. हाँ। सेकेंड है यूज Z स्कोर नॉर्मलाइजेशन टू ट्रांसफॉर्म द वैल्यू 35 फॉर एज वेयर द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एज इज 12.94 ईयर्स। तो आपको 30 वैल्यू दी हुई है 35 और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी मेंशन है 12.94 ईयर्स। तो आपको मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बाद में आपका आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन फिर से निकालने की जरूरत नहीं है बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन है। समझ में आ रहा है? मैम वैल्यू दिया मतलब v का वैल्यू है ना? हाँ, वैल्यू मतलब v का वैल्यू। यस सिर्फ 35 डाल के सॉल्व करना है। यस, जहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी v का वैल्यू मेंशन नहीं है, दो क्वेश्चन में a एंड b, तो आपको इसीलिए सबका निकालना पड़ रहा है, राइट? बट दिस क्वेश्चन में दे आर स्पेसिफिकली गिवन द वैल्यू ऑफ एज, तो सिर्फ उसी का निकालना है। ओके, एनी कंफ्यूजन? नो मैम। Okay. Next is third is use normalization by decimal scaling. अब यहाँ पे 35 का निकालना है, वैल्यू दिया है 35, तो डिवाइडेड बाय कितने से करोगे? डिवाइडेड बाय k की वैल्यू क्या आएगी? What is the value of k over here? मैम 2 2 आएगी, राइट? तो k 2 है, मतलब कितना आएगा? 10⁻² की वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली, तो कितना आएगा? 100। यस, 35 डिवाइडेड, दैट इज योर डेसिमल स्केलिंग वैल्यू। समझ में आया सबको? यस। योर पाटिल, अपूर्वा पाटिल, यस मैम। किसी को डाउट है अभी पूछो कैसे सॉल्व करना है। एनी डाउट इन दिस सेकेंड क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व? किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है? आदर्श, चांदनी? No, ma'am. Sure. Okay. Shall I move to next question? That Yes, is ma'am. question number 3. Question number 3 में दिया हुआ है, suppose the data for analysis include maths marks. So following are the values for maths. ये values दिए हुए रेड में दिखाया है वो. Then use smoothing by mean to smooth the above data using mean depth of 5. अब कैसे करोगे? डेप्थ दी हुई है यहाँ पे। बीनिंग याद आ रहा है कैसे करते हैं बीनिंग मेथड? पहले बीन यस मैम। मीन से करना है। फर्स्ट इसमें मीन से बोला है, सेकेंड इसमें बाउंड्रीज से बोला है, एंड थर्ड इसमें मीडियन से बोला है। यस, तो अभी इक्वली कैसे डिवाइड करोगे? क्योंकि आपको मैम वो मीडियन है कि मीडियन है? मीडियन, मीडियम। बताओ कैसे करोगे? मैम 4 बीन बनेगा, 4 बीन, 5 का। राइट। कैसे डिसाइड किया? यहाँ पे डेप्थ ऑफ 5 दिया है, तो कैसे डिसाइड किया आपने? मैम टोटल 20 है ना, 20 डिवाइड बाय 5। राइट, वेरी गुड। सो आपको डेप्थ दी हुई है 5 और अपने पास जो डेटा सेट है ये वाला रेड वाला, वो टोटल कितने का है? 20 का है, राइट? तो आपको क्या होता है? फॉर्मूला क्या है? d डिवाइडेड बाय n, राइट? सो d इज डेप्थ आपकी क्या है? सॉरी मैंने उल्टा लिखा, नंबर डिवाइडेड बाय डेप्थ, दैट इज नंबर डिवाइडेड बाय योर डेप्थ। सो नंबर कितने हमारे पास? 20 है डेटा सेट, डिवाइडेड बाय 5 डेप्थ दी हुई है, मतलब कितना आएगा? 4। तो ये 4 जो आएगा वो बीन्स आएगा,
तो 4 बीन में आपका डेटा 5 का डिवाइड हो जाएगा। तो पहले बीन में आएगा 9, 11, 12, 15, 18, ये फर्स्ट बीन बनेगी। सेकेंड आएगा 14, 9, 12, 10, 15, देन 14, 11, 10, 8, 17 और लास्ट में ये। समझा? ऐसे 4 बीन्स बनेंगे। मैम इसको समझ- पहले सॉर्ट नहीं करेंगे? सॉर्ट करना है ना बेटा, तो कैसे कैसे ये करोगे? कोई भी डेटा आएगा उसको पहले तो सॉर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे उल्टा Yes, सुल्टा ma'am. डेटा है, राइट, वो करना है। ओके, उसको पहले प्रॉपरली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और उसके बाद उसके बीन्स बनाने हैं। डायरेक्टली मत करना, मैं भूल गई बच्चा। ओके मैम। ओके, उसके बाद आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि आपको डेप्थ दी हुई है, यहाँ पे डेप्थ मेंशन है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको बीन्स मिल जाएंगे। तो ये है बीन्स। ओके, तो बीन आपके 4 आएंगे बीन। समझ में आ रहा है क्या सबको मैं क्या बातें कर रही हूँ? बाकी के लोग, ये 3-4 लोगों को समझ में आ रहा है ऐसे मुझे पता चल रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट अदर्स? दे आर नॉट स्पीकिंग। सो मेरी 4 जो वैल्यू आई है वो बीन की वैल्यू आई है। तो मेरे जो B1 B2 जो बनने वाले हैं, जो मेरे B1 B2 B3 और B4, तो ये मेरे 4 बीन बनेंगे और 4 बीन के अंदर कितनी डेप्थ आएगी? हर वैल्यू कितनी आएगी? 5 वैल्यूज, राइट? Yes, ma'am. सबको समझ में आया है? उसमें पहले आपको मीन से स्मूथ करना है, मीन से स्मूथिंग करना है। ओके, तो मीन से स्मूथिंग मतलब सब जितनी वैल्यू डाली है उसका मीन आएगा, रिप्लेस होगा। सेकंड में आपको बाउंड्री से स्मूथिंग करना है। बाउंड्री से स्मूथिंग करना है मतलब क्या करना है ये स्टूडेंट? मैम मतलब जो पहला पॉइंट रहेगा, जो लास्ट का पॉइंट रहेगा, फिर दोनों में देखने का नंबर कहाँ जा रहा है। देखने का कि मीन के पास आ रहा है या मैक्स के पास आ रहा है, उसकी बाउंड्री चेक करने की और वहां पे वो रिप्लेस करने का। इधर उसके मीन के पास है तो मीन रिप्लेस करने का, मैक्स के पास है तो मैक्स रिप्लेस करने का, राइट? आप लोगों ने शायद ये लिख के लिया हुआ है ना एग्जाम्पल। Yes, ma'am. एंड थर्ड है मीडियम टू स्मूथ। मीडियम टू स्मूथ मतलब मिडिल वैल्यू से करते हैं ना स्मूथिंग, तो मिडिल वैल्यू ऑड है तो हमें डायरेक्टली मिल जाती है। ये ऑड वैल्यूज ही मिल रहे हैं तो आपको डायरेक्टली रिप्लेस होगी वैल्यू। इवन होती तो आपको बीच वाला डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ता, राइट? लेकिन ये 5 वैल्यू मिल रही है मतलब मिडिल वैल्यू आपको इजीली मिलेगी, राइट स्टूडेंट? यस मैम। Yes, ma'am. समझ में आया? किसी को कुछ प्रॉब्लम है अभी पूछो। किसी को नहीं है प्रॉब्लम? तो ट्यूटोरियल 2 सॉल्व करोगे सब लोग बाय ओन? यस मैम। ओके, सो मैं ये क्लासरूम पे डाल दूंगी, तो आप क्वेश्चन तभी कर लेना सॉल्व। तो इसकी मैं डेडलाइन तो फिलहाल नहीं रख रही हूँ बिकॉज यू आर डूइंग द जावा दिस ट्रेनिंग, बट आप खुद से सॉल्व करके जैसे हो सके आप डाल दो, ठीक है? समझ में आया सबको ये स्टूडेंट? Yes, ma'am. ओके, सो विल स्टॉप हियर। डिस्क्रिटाइजेशन का थोड़ा सा पार्ट बचा है, वो थेरोटिकल है। देन विल डायरेक्टली स्टार्ट द थर्ड चैप्टर, क्लासिफिकेशन। ओके, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी डिस्क्रिटाइजेशन। ओके, चलो विल स्टॉप दिस। जस्ट गिव मी अटेंडेंस। Just wait 1 minute. Okay. Roll number 1, Present, ma'am. 2. Present, ma'am. Just wait, huh? 3. आतिश, ये क्यों नहीं आ रहा अभी भी? अनिश, प्रेजेंट मैम। श्रुति, देन साहिल, साहिल भी नहीं है। अर्चना,
Present, ma'am. Poonam, Present, ma'am. roll number 9, Present, ma'am. 10. Present, ma'am. क्या हुआ? मैम कौन रोल बोल रहा नंबर है? 3 प्रेजेंट. मेरा माइक आतिश, चालू आहे. तुझं हे फर्स्ट लेक्चर आहे ना? हां तुला कळतंय का रे? मॅम गावाला होतो. तू गावाला होतास ते मला पण माहिती. तुला लेक्चर कळतंय का हे विचारलं मी. हां कळतंय. हा, जे नाही समजलंय ते पहिलं रिपीट करून घे. मॅथमॅटिकल प्रॉब्लेम येतात त्याच्यावर. ओके मॅम. ओके. रोल नंबर 3 प्रेजेंट. रोल नंबर 11, साक्षी. रोल नंबर 12, Present, ma'am. 13, Present, ma'am. 14, 15, Present, ma'am. 16, Present, ma'am. 17, Present, ma'am. 18, 19, Present, ma'am. 20, Present, ma'am. 21, Present, ma'am. 22, Present, ma'am. 23, 24. Muskan is not there? Muskan. Okay. I'm present. Okay. Then 24, Present, ma'am. 25, Present, ma'am. 28, sorry, 26, Present, ma'am. 27, 28, Present, ma'am. 29, Present, ma'am. 30. विशाल नहीं है. 31, Present, ma'am. 32, Present, ma'am. 33, Present, ma'am. 34, 35. Trupti, not there. Okay. Ketan, Present, ma'am. 37, Present, ma'am. 38, Present, ma'am. 39, Present, ma'am. 40. Harshal, not there. 41, Present, ma'am. 42, 43. 43 present, ma'am. Okay. 44, Present, ma'am. 45, Present, ma'am. 46, Present, ma'am. 46. 47, Present. 48. Present, ma'am. कुठे गेलेला तू धीरज? कुठं ना मॅम? लेक्चर नाही आहेत मधले 2 अटेंड. 49, प्रेझेंट मॅम. 50, Present, ma'am. 51. Sahil, 52, Present, ma'am. 53, Present, ma'am. 54, Present, ma'am. 55, 56, Present, ma'am. 57. Saili, 58, प्रेझेंट मॅम. 59, प्रेझेंट मॅम. 60, 61, 62, 63, 64, 65, प्रेझेंट. 66, प्रेझेंट मॅम. 67, 68, 69, 70, Present, ma'am. 71, प्रेझेंट. 72, प्रेझेंट मॅम. 73, Present, ma'am. 74, Present, ma'am. 75, Present, ma'am. and 76.